ٹائم بکس اسٹیشنرز اینڈ گفٹ سینٹر نجف بازار لیاقت آباد قائم شدہ 1985 عرصہ 35 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف عمل۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 1297 مزید کیسز سامنے آنے کے بعد کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 18,113 ہو گئی ہے اور 32 مزید اموات کے بعد ہلاکتیں 417 ہو گئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 9,164 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 1297 افراد میں ایسی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 4,715 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے بیورو رپورٹ۔ چودھری مجاہد محمود کے مطابق 4L لنک نہر میں 25 سالہ نوجوان نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ ریسکیو ٹیمز نے آدھے گھنٹے کے آپریشن کے بعد نعش برآمد کر لی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس اور ریسکیو وہیکل فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور امدادی سرگرمیاں جاری کر دیں۔ ریسکیو ٹیمز نے لائن سرچ میتھڈ کے ذریعے آدھے گھنٹے میں کامیاب آپریشن کرنے کے بعد نعش کو نہر سے برآمد کر لیا۔ نعش کو ضروری کارروائی کرنے کے بعد THQ سٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شہروز ولد مختار احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ صابری کالونی گلی نمبر 11 کا رہائشی تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل عارف آلہ میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ سبزیاں، پھل، لیموں اور کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عارف آلہ میں رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی پھلوں، سبزیوں، لیموں اور کھجور کا ریٹ آسمان کو چھونے لگا۔ خود ساختہ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ عوام کو رمضان میں ریلیف پہنچانے کی حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تحصیل انتظامیہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی۔ دکانداروں نے رمضان المبارک شروع ہوتے ہی پھل، سبزیاں، لیموں اور کھجور کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر لیا۔ 120 روپے فی کلو بکنے والے سیب کی قیمت 200 روپے، 100 روپے فی کلو بکنے والے لیموں کی قیمت 400 روپے اور 150 روپے فی کلو بکنے والی کھجور کی قیمت 350 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ DCO پاکپتن احمد کمال مان اور اسسٹنٹ کمشنر عارف آلہ رانا آفتاب احمد خان گراں فروشوں سے فوری نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے بیورو رپورٹ۔ چودھری مجاہد محمود کے مطابق اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کی بڑی کارروائی۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ بھگوان پورہ میں جعلی مرچیں اور ہلدی بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ فیکٹری سے بڑی مقدار میں ذیشان فوڈز کے نام کی تیار مرچیں اور ہلدی برآمد ہوئی ہے۔ ملزم چاول کے بھوسے کو ملا کر جعلی مرچیں تیار کرتے تھے۔ جعلی مرچیں اور ہلدی بنانے والے چاول کے بھوسے کے 200 توڑے اور ہرمچی رنگ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ فیکٹری مالک اشتیاق شاہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ سنجابی تاجر رہنماؤں نے AC سنجابی محمد احسن انور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تحصیلدار غلام حسن ناصر بغلانی بھی موجود تھے۔ تاجر رہنماؤں نے گزشتہ روز سیل کی گئی دکانوں اور ٹائم ٹیبل پر بات کی۔ AC سنجابی نے تاجر رہنماؤں کے کہنے پر سیل دکانیں کھول دی ہیں، ٹائم ٹیبل بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو دکانیں پھر سیل کر دیں گے۔ چلتے ہیں ہمارے رپورٹر یوسف ناصر کے پاس۔ جی، اسسٹنٹ کمشنر سنجابی محمد احسان انور سے تاجر برادری کے رہنماؤں نے ملاقات کی ان کے دفتر میں۔ اس موقع پر تحصیلدار غلام حسن ریڈار
नासिर बगलानी भी मौजूद थे। ताजर नाव में सदर कलीमुल्लाह दुमर, नायब सदर अजीमुल्लाह नज़र आका, चेयरमैन अजब सापी, अलाउद्दीन व दीगर भी थे। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से तवील मुज़ाकरात की। असिस्टेंट कमिश्नर ने गुज़श्ता रोज़ बंद की गई कपड़ों के तमाम दुकानें का सेल खोलने का हुक्म दे दिया। ताजर ने नमाओं ने यकीन दिलाया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, बल्कि टाइम टेबल के मुताबिक दुकानें खोली जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने इनकी यकीन दहानी के बाद सील की गई दुकानें खोलने का हुक्म जारी कर दिया। ताजर रहनुमाओं ने दुकानें का सील तोड़कर दुकानें खोली। मोहम्मद यूसुफ नासर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 18। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पाकपतन शरीफ से। डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बदबख्त बेटे ने जायदाद की खातिर वहशियाना तशद्दुद करके हकीकी माँ की पसलियाँ तोड़ दी। तफसीलात के मुताबिक जिला पाकपतन शरीफ थाना सदर के इलाके 10 SP में बेटे सरफराज सुखेरा ने दीगर साथियों के हमरा जायदाद हथियाने की खातिर हकीकी मां तस्लीम बीबी को डंडों सोटों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनकी पसलियां तोड़ दी, शदीद मतरूब किया। मीडिया को तस्लीम बीबी ने बताया कि मेरे 2 बेटे ज़हनी मफलूज हैं। तीसरा बेटा सरफराज सुखेरा मंशियात का आदी है और अपने भाइयों की जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। बेटे सरफराज सुखेरा को बास अफराद की हमायत हासिल है। मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। थाना सदर में दरख्वास्त और मीडिया को लीगल देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO पाकपतन शरीफ फौरी नोटिस लें और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सारे हथ जोड़ के मैं अपील करनी है कि सानू इंसाफ फराहम किया जाए ते साडे इत्थों जिहड़े बंदे ने साडा कुछ बनन नहीं देंदे पे। एक है वाह संजरा वो देंदा पिस्तौल, एक है इत्थों रास धूल वो साडा पता नहीं होने देंदा। एक बिल्ला चौधरी उहदे 2 भरा पुलिस ने वो सानू धमकियां लांदा भी इन्हां ते कुछ कीता तो मैं तुहानू मरवा देना। बिल्ला चौधरी शहर पाकपतन दे रहना। मेरा नाम फैज़ अहमद, मेरी बीवी ने बड़ा तशद्दुद किया गया। मेरा बेटा नाल शामिल है, जो अभी 4 साल पहले आकस चौक वो नाल शामिल नाल मेरे बाकी सारे दुश्मन ने उन्होंने नाल शामिल करके कार्रवाई की। पुलिस वाली कोई मदद करती पे दरखास्त दी। बूढ़े वालदैन ने मेरी वालदा नाल बहुत ज़्यादा तशद्दुद होया है, बहुत ज़्यादा मारिया गया है और इस बिना ते सानू कतल दी धमकियां दित्तियां जा रही हैं कि तुसीं किसी किस्म की साडे खिलाफ कार्रवाई की तो तुहानू कतल कर दिता जाएगा। सर साडी इंसाफ वास्ते जनाब वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अगे साडी हथ जोड़ते अपील है, साडी दाद रसी की जाए, सानू तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, सानू इस जुल्म तो बचाया जाए। कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान फराहम किया। इस मौका पर ख्वाजा इमरान नसीर, MPA जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा सलमान रफीक, PA सादिया तैमूर, MPA मिर्जा, MPA इमरान गुराया, सेक्रेटरी हमजा शहबाज शरीफ, कर्नल मुबशिर, साबिका मेयर और दीगर मेंबरान मौजूद थे। तहसील आरिफाला से खबर शामिल करते हैं। SHO थाना सिटी आरिफाला कमाल नासिर और सब इंस्पेक्टर हाजी पलकशेर की शहर में दबंग कार्रवाइयाँ। शहर के मुख्तलिफ मुकामात से 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई है। SHO कमाल नासिर ने कहा है कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ 24 घंटे जराइम के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। DPO पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर और DSP आरिफाला फयाज अहमद पंसोता ने SHO थाना सिटी कमाल नासिर और सब इंस्पेक्टर हाजी पलकशेर और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी।
हरनाई मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान रोलर स्पोर्ट प्रोग्राम BRSP के सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव बलोचिस्तान नादिर गुल का कोरोना की वबा के एहतियाती तदाबीर और इबादत के हवाले से सदर मुमलिकत का उलमा के साथ 20 नकात पर अमल दरामद और कोरोना वायरस के हवाले से तफसीली इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नादिर गुल गणेश है जी। मैं बलूचिस्तान रोलर स्पोर्ट प्रोग्राम में एज चीफ एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। कल हमारे नहायती काबिल एहतराम वज़ीर आला साहब जनाब मीर जाम कमाल ख़ान साहब ने एक बड़ा मुफस्सिल इंटरव्यू दिया। ये जो इस वक्त वबा दुनिया के अंदर फैली हुई है, उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से जो ये मसला है, इसकी हसासियत है, इसकी संगीनी है और इसके जो असरात हैं हम सब पे सेहत के हवाले से, हमारी माशियात के हवाले से और बड़ी दूरअंदेशी के साथ उन्होंने माजी के अंदर जो दुनिया में एक इक़्तिसादी बहरान आ रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मुफस्सल और बड़ी अपने लोगों का दर्द दिल महसूस करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम सबको इस मसले को सीरियस लेना चाहिए। और यकीनन ये बहुत सीरियस मसला है। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ने हज़ारों की तादाद में कफ़न तैयार करवा के रख लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबा, हमारा मुल्क अब तक उस स्पेस पे नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी हालात की संगीनी यकीनन मौजूद है। हम भी देख रहे हैं BRSP मैं सिविल सोसाइटी की जानिब से हमने बड़ी एफ़र्ट्स किए हैं, कोई 50 लाख लोगों तक हम पहुँचे हैं, लेकिन हमारी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि लोग अभी तक इसको एक मजाक समझ रहे हैं। तो खुदारा इसको एक मजाक ना समझें, बल्कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। और अब चूँकि हमारा बाबरकत महीना रमज़ान का आ चुका है और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने और उलमा ने इस बात पे एग्रीमेंट किया है कि जो इबादत हैं इस बाबरकत महीने में वो जारी रहेंगी। मसाजिद, इमाम बारगाह और दूसरे मज़ाहिब की जो इबादतगाहें हैं वो भी खुली रहेंगी, जो कि अच्छा फ़ैसला है। लेकिन इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अहसन तरीके से इस माह मुबारक को गुजारें, अपनी इबादत भी करें, लेकिन जो कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर हैं वो यकीनन हम अडॉप्ट करें। इसमें सबसे पहले तो जो हमारे मसाजिद हैं, इमाम बारगाह हैं, उनके अंदर एक कमेटियाँ तश्कील देनी चाहिए। जैसे हमने माजी में भी देखा कि हमने दहशतगर्दी से बचने के लिए अपनी मसाजिद का जो एहतमाम किया, इस वबा को भी हमें उसी तरह लेना चाहिए। और मसाजिद के अंदर हमारी मसाजिद हम सब की यकसा हैं, मुश्तरका हैं, तो हमारे जो भी उस इलाके के अंदर साहिब हैसियत लोग हैं वो एक तो मसाजिद के अंदर स्प्रे का एहतमाम करें, दूसरा कोशिश ये करें कि खुले सहन जिन मसाजिद के अंदर खुले सहन है या साथ कोई पार्क है वहाँ पे अपनी नमाज और तरावी का एहतमाम करें। जानिमाज अपने घर से लेकर आएँ, फुटपाथ के ऊपर कोशिश करें कि नमाजी खड़े ना हों। और इसके अलावा ये मसाजिद कमेटियाँ जो हैं लोगों को तरगीब दें और वज़ूख़ाने जो हैं वज़ूख़ानों में और इसके अलावा सफ़ों में भी जो 1 मीटर का फ़ासला है कि 2 लोग छोड़ के खड़े हों, 2 लोगों की जगह छोड़ के वहाँ पे खड़े हों, इस तरह वज़ूख़ानों में भी ये स्पेस दें। और हाथ धोने की तमाम के तमाम वज़ूख़ानों के अंदर साहिब हैसियत लोग साबुन रख दें ताकि लोग 20 सेकंड तक अपना हाथ धोएं। इसके अलावा जो जिन पे उलमाए कराम और हुकूमत का इत्तेफाक है कि कम से कम इसमें जो वो लोग जो कि उम्र रसीदा हैं और किसी भी सिम्टम्स का, या उनको बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है या ज़ईफ़ लोग हैं, उनको मसाजिद में ना आने दें, उनको घरों में तलकीन करें कि वहाँ पे वो अपनी नमाज अदा करें। इसी तरह एहतिकाफ़ जो है हमारी गुजारिश होगी कि एहतिकाफ़ भी आप घर के अंदर ही बैठ के एहतिकाफ़ करें ताकि इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकें, हम अपने तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको बचा सकें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जो एक इंसान का मसला नहीं है, इसमें हमारा सारा ख़ानदान मुतासिर हो सकता है, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो मेरी दस्त बदस्ता तमाम आवाम से गुजारिश है कि इसकी संगीनी को जानें और ये बहुत सीरियस मसला है, इसके ऊपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और ख़ास तौर पे इस बाबरकत महीने के अंदर हमारा जो एक और मसला जिसकी मोहतरम वज़ीर आला साहब ने बड़ी वाज़े तरीके से निशानदेही की कि माशी तौर पे भी एक बहुत बड़ा मसला है, मुल्कों का मसला है और हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, तो इस बाबरकत महीने में कोशिश करें कि हम अपने जो हमसाए हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनकी दिल खोल के मदद करें और इस महीने की बरकत के हवाले से अपनी इबादत में
अल्लाह पाक से रहम की दुआ करें ताकि अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखे और इस वबा को ख़त्म करे और पूरी इंसानियत को महफूज रखे इस इबादत से। मैं एक मरतबा फिर सिविल सोसाइटी की जनाब से तमाम उलमाए कराम, तमाम जो हमारे लोग हैं जो मसाजिद का इंतज़ाम इंसराम संभालते हैं अपने अपने महलों में, कि वो इस बाबरकत महीने में मसाजिद मदारिस के हवाले से इन एहतियाती तदाबीर पे जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ अग्री हुआ है उन पे अमल करें। इसी में हमारी और आप सब की फलाह भी है, इसी में हमारी और आपकी हिफाजत भी है। और इसी तरीके से हम जो हमारी हुकूमत है, जो हमारा तिब का अमला है, हम उनको मज़ीद मुश्किलात से दो चार ना करें, हम अपने आप को मुश्किलात से दो चार ना करें, अपने घरों में रहें और इन तमाम एहतियाती तदाबीर से पे काम लें। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत बरसाए और अल्लाह पाक इस वबा से हमारी जान जल्द छुड़ाए। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से। हवेली लखा में कोरोना मरीज, पुराना सब्जी बाजार गली मास्टर अब्दुल सत्तार वाली में एक मरीजा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और वो खातून साहिवाल में हैं। अब इनके अहल खाना को करंटीना मुंतकिल कर दिया गया है। नुमाइंदा इब्रार हुसैन, ब्यूरो चीफ अटक सिटी, जिला अटक की तहसील हदरू के रिहायशी में बुजुर्ग में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। रेस्क्यू 1122 हदरू के एहलकारों ने सिविल अस्पताल अटक के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया। तहसील हदरू के गांव कोट लद्दी के रिहायशी बुजुर्ग में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। क्वाड 19 प्रोटोकॉल के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने सिविल अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया है। नुमाइंदा इब्रार हुसैन, ब्यूरो चीफ अटक सिटी, अटक खोर्द जियारत के करीब 3 दिन कबल डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। लाश रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों ने निकाली। लाश की शनाख्त 18 साला अब्दुल वाजिद वल अब्दुल हादी के नाम से हुई है, जो कि ज़हनी तौर पर मासूर था। डूबने वाले शख्स का ताल्लुक खैराबाद से है। खबर शामिल करते हैं तहसील आरिफाला से। डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी आरिफाला की हदूद में गुमशुदा 2 साला बच्ची आमना वुरसा के हवाले कर दी गई। इंस्पेक्टर कमाल नासिर ने बताया कि बच्ची को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो घर से खेलने के लिए निकली थी। वापस न आने पर वालिदैन को तशवीश लाहक हुई। थाना सिटी आरिफाला पुलिस ने बच्ची को बाहिफाजत तलाश करके वुरसा के हवाले कर दिया। वालिदैन खुशी दिल से निढाल SHO कमाल नासिर को ढेरों दुआएं दी। SHO थाना सिटी आरिफाला कमाल नासिर की इस काविश को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं ढारनवाला से। ब्यूरो चीफ 18 न्यूज़ चौधरी नईम खालिद के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां मियां सरमद हुसैन के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इलाके भर के नंबरदारों का अहम इजलास नायब तहसीलदार खालिद महमूद की ज़ेर सदारत ढारनवाला में मुनक्किद हुआ। इजलास में नंबरदारों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गंदुम बहरान से निपटने और हुकूमती टैक्स वसूली से मुतल्लिक अहकामात और हिदायत जारी की गईं। नायब तहसीलदार खालिद महमूद ने सिटी प्रेस क्लब ढारनवाला से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कोई भी जिम्मेदार 25 मन से ज़ायद गंदुम घर में स्टोर नहीं कर सकेगा। तमाम गंदुम हुकूमती सेंटर्स पर जमा करवानी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में गंदुम जब्त कर ली जाएगी, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़िला से बाहर गंदुम ले जाने पर भी पाबंदी आयद है। इन हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद के लिए नंबरदार हज़रात हुकूमत की मुआवनत करेंगे। खबर शामिल करते हैं तहसील बुरेवाला इलाका थाना सदर चुक्की डलन बंगला के नवाही गांव चक नंबर 158 EB काश्तकार की फसल तबाह बर्बाद कर दी गई।
तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 158 EB के रिहायशी नाजिम वल्दलाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बतलाया है कि मैंने तकरीबन 4 एकड़ फसल जंतर लगाई हुई है, जो कि मुलजिमान आतिशी असलहे से लेस होकर मेरी काश्ता फसल को तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरे मना करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी कि अगर पुलिस को बतलाया तो जान से मार देंगे। मुलजिमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करके मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। एहतजाज करते हुए DIG मुल्तान वसीम अहमद खान और DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान से इंसाफ की अपील की है कि इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। 152 की साढ़े ना मेरे नाम और लाल कौम खड़ा 21 उर्बे 8 कनाली 17वां किला वो लंबा है जी मेरा जी दिंगाना की ट्रैक्टर मेरा जन तो बीज वाह सटे ने ते प्रेशर की 8-10 सवाणियां 10-15-16 बंदे हथियारों की धक्केशाही की साढ़े जी आके किया जाए कारोबार DPO बिहाड़ी साड़ी जी इमदाद की जाए। जनाब DPO ज़िला बिहाड़ी में हमारी इमदाद की जाए। 8 कनाल हमारा रकबा है, जो सानू इंसाफ चाहिए जाती कर दरखास्त मदर हुसैन वालद अनवर कौम खरा मदर हुसैन वालद हाफिज नसीर कौम खरा कौम खोखर अजहर हुसैन वालद हाफिज नसीर कौम खोखर हाफिज फरीद वालद नसीर हाफिज नसीर अहमद खोखर।